Hello guys, welcome back to my channel once again, and here we are with my new video. I have researched a little bit about this topic, which most of the girls were asking about this now, if there is about MNS. So here we are. So let's get started. First of all, what is MNS? MNS is Military Nursing Service. It is a course, basically BSc nursing, which is provided by AFMC as well as other 5 institutes of India, right? So MNS is only for girls. Specifically, it is for girls. And if you guys are wishing to, if your dream is to join army, then it is definitely a good chance to join army, because you can serve army even by being a nurse, or after once you graduate from graduate after taking your degree, right, BSc nursing, you will definitely become a lieutenant. So it's definitely good, you'll be getting ranks and all the respect that normal officer is getting, you will be getting the same. And of course, good amount of salary is there. Definitely salary is good. So there are a lot of benefits if you join MNS, or if you, and it is just like FMC, for like FMC you have to give exam, interview and all these things. So it is also similar. There is a test as well, you have to give test. So let's get started guys, because I'm really excited to tell you about all this specifically. So it is a BSc nursing course and it is of 4 years, and as I have already told you guys that it is only for females, yani only female candidates can participate, and it is organized every year. And the one biggest thing about this exam is it is only in English language, no other languages are there. And in total there are 6 colleges in India and 220 seats, and one is our favorite AFMC Pune, then in Kolkata, INHS Ashwini, New Delhi, Lucknow and Bangalore, right? Moving on, what is the eligibility criteria? First, you have to be, it is only for females. I know most of the boys will be like, what is this, Dee? What are you doing here? It's not, it's only for females, and the candidate must be unmarried. It means unmarried, or you could be divorced, widow, it's not, but unmarried is the criteria. And you should be an Indian citizen, एंड योर मिनिमम एज आप 17 साल के होने चाहिए, मिनिमम इतना है, और मैक्सिमम आपकी एज 25 ईयर्स हो सकती है, राइट। नाउ व्हाट आर द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आर द सेम, मतलब सिमिलर है एफएमसी जैसा, इट इज़ हाउ इट इज़। तो पहला तो ये कि यू शुड हैव क्लियर्ड योर 12th इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। And then what should be your subject? Your subject should be PCB, that is physics, chemistry, bio, and English is the mandatory subject which जो आपका 12th में होना चाहिए, राइट। एंड इन एग्रीगेशन अगर इनका टोटल मार्क्स देखा जाए तो 50% से ज़्यादा होना चाहिए एग्रीगेटेड। एंड जो कैंडिडेट्स मतलब जो अभी 12th में है राइट नाउ, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इट, दे कैन ऑल्सो अपीयर फॉर दिस टेस्ट। नाउ मूविंग ऑन मेडिकल फिटनेस, आई वुड से इट इज सेम as AFMC, right? So medical fitness, there is nothing different. The tests are same, chest x-ray, USG and all those ENT and ENT surgery, वो सारे टेस्ट होते हैं. And there are criteria for height also, right? So minimum height for girls it is 148 centimeter, and for north eastern girls and the girls जो हिमालय मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए, या फिर जो कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, राइट, उनका हाइट जो मिनिमम है वो 143 सेंटीमीटर्स है। एंड ऑल्सो यू हैव टू, ये जितना भी मेडिकल फिटनेस है ना, ये सेम जैसे एफएमसी का मेडिकल फिटनेस पर है, सेम वैसा ही है। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज होती है तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो, मेडिकल फिटनेस वाला, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ नाउ वंस हाउ इट इज़, आप MNS मतलब आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो फॉर दिस यू हैव टू डेफिनेटली गिव अ टेस्ट। इसका एक अलग से वो लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, साल में एक बार टेस्ट होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। और सब्जेक्ट जो इसमें कवर किए जाते हैं वो आपके 11th 12th के ही सब्जेक्ट हैं, दैट इज़ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज। और टोटल 150 क्वेश्चंस और NCERT, बेसिकली NCERT कवर किया जाता है।
एंड टेस्ट सेंटर्स यूजुअली बहुत सारी सिटीज़ में, इट्स नॉट लाइक कि आपको स्पेसिफिकली जहाँ पर एक कॉलेज लोकेटेड है वहाँ पर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट सेंटर्स हर बहुत सारी सिटीज़ में है, राइट। तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ना अब हम कुछ टेंटेटिव डेट्स की बात कर लेते हैं। मतलब अगर आपको चेक करना हो ना, तो व्हेन यू गाइज विल बी चेकिंग द इन्फॉर्मेशन कि कब, तो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन यूजुअली जो है इट कम अप बाय नवंबर। और आप चेक कहाँ कर सकते हो, राइट। तो आपको चेक करना है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, आप www.joinindianarmy.nic. उस पर जाके चेक कर सकते हो। फॉर्म फिलिंग भी सेम नवंबर पर आ जाता है। एडमिट कार्ड अराउंड 3rd वीक ऑफ मार्च तक। एग्ज़ाम डेट मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अप्रैल, बट समटाइम्स मतलब डेट दीज आर ऑल आई वोंट से कि एग्जैक्ट डेट्स दे मे वेरी, बिकॉज राइट नाउ कोरोना पैंडमिक की वजह से डेट्स, एज यू गाइज ऑलरेडी नो, मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग कि अभी तो टेस्ट कितना पोस्टपोन सितंबर में आई फील, राइट। 11 सितंबर या MNS के एग्ज़ाम 11 सितंबर को है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। और ये जो मैं बता रही हूँ जनरल है, अभी करंट की सिचुएशन से इसका कोई लेना देना नहीं है गाइस। तो अभी तो क्योंकि एग्ज़ाम ही 11 सितंबर को होगा ना, तो यू कैन इमेजिन अगर एग्ज़ाम अभी होगा फिर सारी चीज़ें बहुत डिले हो जाएंगी। तो दीज आर जनरल थिंग्स जो यूजुअली हर ईयर होता है, राइट। तो एडमिट कार्ड आने के बाद आपका एग्ज़ाम डेट, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट भी विदिन 1 मंथ आ जाता है। फिर आपका इंटरव्यू आफ्टर वंस यू हैव गिवन योर एग्ज़ाम, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा एग्ज़ाम देने के बाद, तो आपका इंटरव्यू होगा, राइट। और फिर उसके बाद so guys, finally there is, after giving your test, merit list is prepared on the basis of which you will be allowed, you will be selected. Candidates are selected for the interview, and then after giving interview and being medically fit, there is a final merit list which is prepared, and on that basis you will be selected for MNS, right. So this is the process. Only fit candidates are selected. Then how can you apply for it? You can apply first, you have to go to the website, that is www.joinindianarmy.nic. उस पे जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करोगे तो OTP वेरिफिकेशन आएगा, देन सारी डिटेल्स, आपका नेम, के मार्क्स, वो सारे आधार कार्ड एंड ऑल। फिर आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है विच इज़ 750 रुपीज़, राइट। फिर आप उसके बाद जो नेक्स्ट आपका फाइनल स्टेप होता है, आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते हो। डेफिनेटली आपको इसके लिए आपकी ईमेल आईडी चाहिए होगी और आपका फ़ोन नंबर और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें। There are a few more details which I would like to tell you, like stipend, you will be getting per month, this all 250 rupees per month। आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा 800 रुपीज़, वो भी फर्स्ट ईयर में, मतलब जब आप इंटर होते हो। ये सारी चीज़ें कोर्स के टाइम पर हैं। और आपको फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, यानी आपका हॉस्टल फीस नहीं लगने वाला है। और फिर आपका जो है, आप एक बार आपका BSc नर्सिंग का कोर्स हो गया, उसके बाद आप SSC में जा सकते हो या फिर परमानेंट कमीशन। SSC में आपको मिनिमम सर्विस 5 ईयर्स देना होता है, परमानेंट कमीशन तो आप लॉन्ग रन में कर सकते हो, राइट। नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? तो डॉक्यूमेंट्स 10th-12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फ़ोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज़, डोमिसाइल हो गया आपका, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आर्मी डिपेंडेंट कार्ड, अगर आपके पापा आर्मी में हैं तो डेफिनेटली वो डिपेंडेंट कार्ड होता है आर्मी पर्सन के पास, तो वो वाली चीज़ें, राइट। और अगर आपको गैप सर्टिफिकेट, यानी मतलब जस्ट 12th के बाद नहीं हो, आप फ्रेशर नहीं हो, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ये आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है, राइट। तो आप वो बनवा लेना। और फिर आपके पास जितने भी स्कूल के सर्टिफिकेट है ना, जो भी आपको मिले हों, वेदर स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट, ड्राइंग, कुछ भी हो, आप वो ले जाना। एंड सो दिस इज़ ऑल गाइस, इतना ही है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है MNS से रिलेटेड, बट स्टिल इफ़ यू हैव सम डाउट्स ना, सो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो पढ़ते रहो, बस आई नो अभी सिचुएशन बहुत ऐसा है, तो आई डोंट वांट टू कमेंट, राइट, कि मैं क्या बोलूँ मुझे, बिकॉज आई नो सब लोग बहुत परेशान है कि एग्ज़ाम्स का जो भी चल रहा है।
बट आई थिंक वट यू गाइज कैन डू ना, आप बस पढ़ते रहो. दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट इन द करेंट सिचुएशन. और सब कुछ अच्छा होगा गाइज, ज़्यादा परेशान मत होना. एंड इफ़ यू, और बस यहीं पर ऑल द बेस्ट सबको एग्ज़ाम के लिए. अगर एग्ज़ाम होंगे तो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से देना. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो. टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइज.